مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام افتخار گیل اور میں ماسٹر آف ڈیوینٹی IGM کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ شکر گزار ہوں خدائے بزرگ و برتر پاک خدا کا کہ آج پاک خدا نے مجھے یہ موقع بخشا کہ میں اس پاک خدا کا کلام آپ تک پہنچا سکوں، آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس کے ساتھ ساتھ شکر گزار ہوں پاسٹر سیسل جان برکت صاحب اور فیتھ ٹی وی کی تمام ٹیم کا، جنہوں نے یہ مجھے موقع بخشا، اس پلیٹ فارم پہ آنے کا موقع بخشا تاکہ میں یہاں پہ آ کر آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کر سکوں۔ ہمارے لیے آج کا جو خدا کا کلام اور اس کا ٹاپک جو ہے وہ ہے قربانی، سیکریفائس۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ قربانی ہے کیا۔ قربانی ایک مرکزی موضوع ہے جو خدا کے حضور عبادت، کفارہ اور شکر گزاری یا وقف کے طور پر کسی بھی چیز کو خدا کے حضور پیش کرنے کی علامت ہے۔ قربانی کے متعلق پرانے اور نئے عہد نامے میں ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، ہمیں سکھایا جا چکا ہے بار بار، اور اس عمل پر ہم بہت بار اپنی پورے دھیان سے عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم سب سے پہلے سیکھیں گے قربانیوں کی اقسام کے متعلق۔ سوختنی قربانی، احبار پہلا باب، مکمل طور پر جلانے والی قربانی۔ نذرانے کی قربانی، احبار دوسرا باب، آٹے اور تیل کی قربانی جو کہ شکر گزاری کے لیے دی جاتی ہے۔ سلامتی کی قربانی، احبار 3 باب میں، خدا کے ساتھ رفاقت کے لیے ایک ضیافت جیسی قربانی۔ گناہ کی قربانی اور جرم کی قربانی کے حوالہ سے ہم سیکھتے ہیں احبار 4 باب اور 5 باب میں۔ گناہ کی قربانی غیر ارادی گناہوں کا کفارہ ہے، اور جرم کی قربانی مخصوص گناہوں کے بدلے پیش کی جانے والی قربانی ہے۔ نئے عہد نامے میں قربانی کے متعلق ہم یسوع المسیح کی قربانی کے بارے میں جانتے ہیں، اور اس کے حوالہ سے ہمیں عبرانیوں کی کتاب اس کا 9واں باب اور 26ویں آیت، اس کے ساتھ مقدس یوحنا کی کتاب پہلا باب اور 29ویں آیت جس میں یوں مرقوم ہے، دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ کو اٹھا لے جاتا ہے۔ ایمانداروں کی زندہ قربانی، رومیوں پہلا باب اور اس کی 12ویں آیت، اس میں یوں مرقوم ہے، خدا کی رحمتیں یاد دلا کر نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بدنوں کو ایسی قربانی کے طور پر پیش کرو جو زندہ اور مقدس خدا کو پسند ہے۔ تعریف اور نیک اعمال کی قربانی، عبرانیوں 15 باب اور اس کی 13 سے 16 آیت میں یوں لکھا ہے کہ پس ہم یسوع کے وسیلہ سے ہمیشہ خدا کے حضور تعریف کی قربانی چڑھاتے رہیں، یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے رہیں۔ نیکی کرنے اور دوسروں کے ساتھ چیزیں بانٹنے کو نہ بھولو، کیونکہ ایسی قربانی خدا کو پسند ہے۔ محبت کی قربانی، افسیوں 2 باب اور 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، محبت میں چلو جیسے مسیح نے ہم سے محبت کی اور اپنے آپ کو ہمارے واسطے خوشبودار قربانی اور نذر کے طور پر خدا کے لیے دے دیا۔ سخاوت کی قربانی، فلیپیوں 18 باب اور اس کی 11 آیت میں یوں لکھا ہے کہ میں سب کچھ پا چکا، مزید بھی مجھے افراطیوں کے ذریعے بہت سے تحفے ملے جو تم نے مجھے بھیجے، خوشبودار نذرانے اور خدا کو پسندیدہ قربانی میں شامل جو ہیں۔ ان قربانیوں کے متعلق یہ قربانیاں ایمانداروں کی قربانی، تعریف اور نیک اعمال کی قربانی، محبت کی قربانی اور سخاوت کی قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اس روئے زمین پہ رہتے ہوئے مختلف موقعوں پر یہ قربانیاں دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو قربانی کے لیے تیار رکھ سکتے ہیں،
हमें खुदाई बुजुर्गों बरतर किस वक़्त ये मौका बख्शे हम नहीं जानते, लेकिन हमें अपने आप को कुर्बानी देने के लिए तैयार रखना है। अगर हम अपने आप को इस मकसद के लिए लेके आते हैं तो लाजमन हम खुदा के हजूर में मकबूल ठहरेंगे और हम बहुत सी बरक़ात से माला माल भी किए जाएंगे। आज के दौर में कुर्बानी का अगर ज़िक्र देखें तो पेशा वराना ज़िंदगी में कुर्बानी, मुलाजमत के बाज़ार में कुर्बानी अक्सर कामयाबी की सीढ़ी बनती है। पेशावर अफराद ज़ाती वक्त, सुकून, सेहत, भूख, प्यास को भी तरक करते हैं। अपनी इन चीज़ों को कम अहमियत देते हैं, इन चीज़ों की कुर्बानी देते हैं। क्यों? ताकि हमारा काम मुकर्ररा वक्त पे ख़त्म हो सके, ताकि हम माली तौर पर मुस्तहकम हो सकें। दूसरी तरफ अगर हम देखें कारोबारी अफराद, बिजनेसमैन, वो भी अपने माली इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कुर्बानियाँ देते हैं, बेशुमार रातों को जागते हैं, और वो ये सब कुछ भी इसे पेशा वराना ज़िंदगी की कुर्बानी का हिस्सा हैं। समाजी मकासद, समाजी तौर पर जो कुर्बानियाँ दी जाती हैं, जदीद मुआशरे में ऐसे अफराद और ऐसे गिरोह मौजूद हैं जो मुआशरती भलाई के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, जो कि इस रुए ज़मीन पे रहते हुए मुख्तलिफ़ तरीक़े से कुर्बानियों के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे गिरोह हैं। समाजी कारकुन, कारकुन एक अक्सर अपनी ज़ाती आसाइशों को तरक करते हैं, पसमानदा तबकात की मदद करते हैं, ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मदद की ज़रूरत होती है, और वो गिरोह या वो तबकात या वो समाजी कारकुन जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। और ये तमाम मदद एक कुर्बानी का हिस्सा हैं। वो अपने वक़्त को निकालना, एक वक़्त की कुर्बानी देना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। वो मौसम कैसा है उन्होंने नहीं देखा, वो मौसम अच्छा है, गर्म हो, सर्द हो, बारिश हो, सर्दी हो, लेकिन वो निकलते हैं, अपना एक कदम बढ़ाते हैं उन लोगों के लिए। ये है समाजी कुर्बानी का हिस्सा, ये है हिस्सा समाजी मकासद के लिए। लेकिन इनके ये कदम उठाए हुए खुश करते हैं खुदाई बुजुर्गों बरतर पाक खुदा को, क्योंकि वो अपना कीमती वक्त उसकी कुर्बानी दे रहे होते हैं। ताल्लुकात में कुर्बानी, सेहतमंद ताल्लुकात में भी बाहमी कुर्बानी की अहम ज़रूरत है। इस रुए ज़मीन पे रहते हुए अगर मैं एक अच्छा दोस्त चाहता हूँ, एक अच्छा भाई चाहता हूँ, एक अच्छा ख़ानदान चाहता हूँ, तो मुझे कुर्बानी के लिए अपने ख़ानदान में, अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा। हम मुख्तलिफ़ तरीक़े से कुर्बानी देते हैं। दोस्ती, शादी ब्याह, शराकतदारी, इन तमाम चीज़ों में कुर्बानी अहमियत रखती है। अपने प्यारों के लिए वक्त निकालना, सबसे बढ़ के चीज़, इख्तलाफात होने के बावजूद जब हम अपने प्यारों के लिए वक्त निकालते हैं, उनकी किए गई गलतियों को इग्नोर करते हैं, लापरवाही बरतते हैं या उनको एक साइड पे कर देते हैं, लेकिन उनकी तरफ एक कदम बढ़ाते हैं, तो ये भी हमारी कुर्बानी का हिस्सा है। रूहानी और मजहबी कुर्बानी, जदीद दुनिया में रूहानी और मजहबी अमाल में कुर्बानी का तस्वर भी ज़िंदा है। रोज़ा रखना, खैरात देना, खिदमत के अमाल, ये सब ऐसे अमाल हैं जिनसे इंसान खुदा के लिए अपनी अकीदत, अपने प्यार, अपनी मोहब्बत का इजहार करता है। ये सब रूहानी तरक्की या रूहानी ज़िंदगी या रूहानी तौर पर कुर्बानी के अमाल हैं, इनमें शामिल है। आज के दौर में हम अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार रख सकते हैं। हम आज के दौर में कुर्बानी को एक साइड पे भी कर देते हैं, लापरवाही बरतते हैं कुर्बानी देने के लिए, अपने ज़ाती मफाद को देखने के लिए, लेकिन अपने ज़ाती मफाद को तरक करना ही कुर्बानी देना है। अगर हम क़ब्ल अज़ मसीह देखें तो उस वक़्त कुर्बानी का ज़िक्र स्टार्ट हुआ। सबसे पहली कुर्बानी काहिन और हाबिल की थी। एक भाई ने अगर कुर्बानी दी
अपने फसलों में से, तो दूसरे भाई ने कुर्बानी दी अपने जानवरों में से। उसके बाद हम बाइबल मुक़द्दस में सुनते हैं पैदाइश 8 बाब में नूह ने कुर्बानी चढ़ाई। क्यों? खुदाई करीम को खुश करने के लिए। फिर उसके बाद इब्राहिम और इसहाक की कुर्बानी के मुतालिक सुनते हैं, जब खुदावंद ने पुकारा कि अपनी सबसे प्यारी चीज़ को मेरे लिए कुर्बान गाह पे ले जा, तो कुर्बान गाह पे ले जाने से भी ना डरा, इस चीज़ को तर्क ना किया कि मैं खुदावंद के लिए इस अपनी सबसे प्यारी चीज़ को तर्क करूं। और फिर एक ऐसी चीज़, एक ऐसा काम, एक ऐसा अमल जो कि बहुत सारी उम्र हो चुकी थी, फिर भी वो अपने बेटे की कुर्बानी देने से उसने दरेक नहीं किया। इन क़ब्ल अज़ मसीह कुर्बानियों के बाद हम सीखते हैं हमारे निजात दहिंदा यस्सु अल मसीह की कुर्बानी, जो कि हम सब के गुनाहों के वास्ते दी गई, जो कि खून बहाया गया हम सब के वास्ते। हमें कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना है। वो कुर्बानी हमारे लिए एक नमूना थी, एक एग्जाम्पल थी, एक मिसाल थी, जो कि हमारे दिलों में ज़िंदा है। यस्सु अल मसीह निजात दहिंदा की कुर्बानी हमारे दिलों में ज़िंदा है, लेकिन क्या हम उस कुर्बानी को अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपने ज़िंदगी में उनको अहमियत देते हैं? क्या हम कोई भी कदम उठाते वक्त सोचते हैं कि यस्सु अल मसीह निजात दहिंदा ने मेरे लिए खून बहाया, क्या मैं किसी दूसरे शख्स के लिए खून बहा सकता हूँ? लाजमी नहीं कि हम अपने जिस्म से खून निकाल के किसी के लिए खून बहाएं, लेकिन अपने वक़्त को किसी दूसरे के लिए निकालना, अपने रुपए पैसे को किसी दूसरे के लिए निकालना, अगर उनके चेहरे पे कोई खुशी आ सके तो उसकी मदद करके हम कुर्बानी कर सकते हैं अपने रुपए पैसे की। अगर किसी शख्स को, अगर किसी बीमार को हमारे वक्त की ज़रूरत है तो हम उस बीमार के पास बैठ के उसकी तीमारदारी करते हैं, तो ये भी हमारे कुर्बानी का हिस्सा है। कुर्बानी देना खुदावंद को खुश करना है। कुर्बानी देना खुदावंद के नज़दीक जाना है। कुर्बानी देना अपने आप को निजात के लिए तैयार करना है। कुर्बानी देना हमें अब्दी ज़िंदगी का हिस्सा बनाती है। कुर्बानी देना जो है वो हमें उस ख़ास मेरास जो खुदाई बुज़ुर्ग बरतर ने हमारे लिए वक्फ़ कर रखी है उसका हिस्सा बनाती है। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि अगर हम खुदा के साथ चलते हैं तो उस पाक मेरास का हिस्सा बनेंगे। तो क्या कुर्बानी देना हमारा सिर्फ पहला कदम है? क्या इस कुर्बानी को हम कदम अगर उठाते हैं तो क्या हम उस मेरास को हासिल कर सकते हैं? ज़रूर। खुदाई बुज़ुर्ग बरतर को खुश करने के लिए कुर्बानी जैसा जज्बा या कुर्बानी का अमल अपनी ज़िंदगी में करूं, तो फिर खुदाई बुज़ुर्ग बरतर पाक खुदा के करीब मैं हूँगा। हम सब हो सकते हैं जब हम हर वक्त ये सोचें कि मैं खुदा को कैसे खुश कर सकता हूँ, मैं खुदा के करीब कैसे जा सकता हूँ। हम एक अक्सर औकात गीत गाते हैं, तेरे दिल के दर पर यीशु खटखटाता। वो खटखटा रहा है कुर्बानी देने के अमल के ज़रिए। वो हमें पूछ रहा है कि क्या तू ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है? क्या यूँ तू कुर्बानी देने के लिए तैयार है? हम अगर कुर्बानी देते हैं तो खुदाई बुज़ुर्गों बरतर हमारी तरफ कदम बढ़ाते हैं। उस वक़्त हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं अगर किसी के लिए 1 रुपया खर्च करूँगा तो मेरी जेब में से 1 रुपया कम होगा, मेरी आसाइश, मेरी जो कमज़ोरी है वो बढ़ेगी, मेरे जो माली तौर पर जो मैं है वो कमज़ोर हो जाऊँगा। हम ये सोचते हैं और हम अपने आप को खुदा से दूर करते हैं, क्योंकि कुर्बानी देना खुदा को खुश करने का अमल है। ये एक ऐसा जज्बा है जो ज़मीन पे रहते हुए इंसान खुश हो तो फिर हमारी रूहानी ज़िंदगी में खुदाई बुज़ुर्गों बरतर खुश होते हैं। बाइबल मुक़द्दस बयान करती है कि अपना माल ज़मीन पे जमा नहीं करो बल्कि आसमान पर जमा करो। जो कुछ तुम ज़मीन पे बांधोगे वो आसमान पे बंधेगा। हमने अपना माल ज़मीन पे नहीं, जहाँ पे चोर चोरी कर सकता है, जहाँ पे जंग लगता है, ज़मीन पे नहीं जमा करना, बल्कि हमने आसमान पर जमा करना है उस खुदाई बुज़ुर्गों बरतर पाक खुदा के साथ। आइए अजीज़ों, हम अपने सरों को झुकाएं और खुदाई बुज़ुर्गों बरतर पाक खुदा के आगे अपनी तमाम मिन्नतें, मुरादें और अपनी दुआएं, इल्तिजाएं उनके आगे उस पाक और सुंदर कदमों में रखें। ए पाक खुदा, ए बाप, हम शुक्रगुज़ार हैं आज के इस वक़्त और इस घड़ी के लिए, आज के इस मौका के लिए जो आपने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा कि हम आपके कलाम को सुन सकें। आज के कलाम के लिए शुक्रगुज़ार हैं कि आपका कलाम
ہمارے لیے ہماری زندگیوں میں بخشا گیا۔ آج کے اس وقت، اس گھڑی، اس لمحے کے لیے اور شکر گزار اس پلیٹ فارم کے لیے ہیں، ان پاسٹر صاحبان کے لیے ہیں، اس پوری فیتھ ٹیم کے لیے، پاسٹر سیسل جان برکت، ان کے لیے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے یہ پلیٹ فارم بنایا، جن کے ذریعے ہم آپ کا جو خاص پیغام ہے وہ سن سکتے ہیں۔ شکر گزار ہیں کہ ہم اس روئے زمین پر زندوں کی زمین پہ ہیں۔ جب یہ کلام ان لوگوں تک پہنچے، ان کے لیے باعث برکت ثابت ہو، ان کی زندگیوں کو بدل دے۔ یہ سبھی کچھ مانگتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے یسوع المسیح کے نام سے، آمین۔